السلام علیکم۔ آج آپ کی یہ آن لائن کلاس کی شروعات ہوتی ہے۔ 7ویں جماعت کے لیے ویڈیو ہے اردو زبان کی۔ آپ کی درسی کتاب جو ہے اس کا نام ہے اپنی زبان 7ویں جماعت کے لیے، اور اس کے صفحہ نمبر 1 پر جو پہلی نظم ہے وہ ہے میرا وطن کے عنوان سے۔ اس نظم کے شاعر شفیع الدین نیّر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نظم پڑھانے سے پہلے اس کے الفاظ معنی پر آپ دھیان دے دیں تاکہ نظم کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس لیے صفحہ نمبر 4 نکال لیجئے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں سرخ رنگ سے یعنی لال روشنائی سے لکھا ہوا ہے، معنی یاد کیجئے۔ اس میں سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے قمری۔ قمری فاختہ کی قسم کا ایک پرندہ، اس کی آواز نہایت گونجدار ہوتی ہے، یعنی بہت آواز اس کی گونجتی ہے جب یہ بولتا ہے، اسے قمری کہتے ہیں۔ فاختہ کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے یہ۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے چکور۔ یہ تیتر کی قسم کا ایک پرندہ ہے، اسے چاند کا عاشق بھی کہتے ہیں چکور کو۔ بن کے معنی ہے جنگل، سرسبز یعنی ہرا بھرا تر و تازہ، غلے یعنی میوے، اناج، میوے یعنی خشک پھل، بادام، اخروٹ اور کشمش وغیرہ، یہ میوے کہلاتے ہیں۔ ترکاریاں یعنی سبزیاں۔ اس کے نیچے جو لفظ ہے وہ ہے گلکاریاں۔ گلکاریاں مطلب نقاشی کرنا، گل بوٹے بنانا، پھول تراشنا۔ سیراب کے معنی پانی سے بھرا ہوا، تر و تازہ۔ زرخیز کے معنی ہے جس زمین میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے یعنی اپجاؤ، اس کو زرخیز کہا جاتا ہے۔ چشمہ کہتے ہیں زمین سے ابلتا ہوا پانی یا سوتا۔ رما بہتا ہوا، فردوس جنت یا بہشت۔ گما شک، شبہ یا وہم۔ دلکش کے معنی ہوتے ہیں دل پسند، دل کو لبھانے والا، دل کو اپنی طرف کھینچنے والا۔ باغ ارم جنت کا باغ۔ باغ عدن جنت کا وہ باغ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، وہ باغ عدن تھا۔ اس طرح سے اس کے الفاظ معنی آپ نے دیکھے۔ اب ہم اس نظم کی ریڈنگ کریں گے۔ یہاں میں نے جو نظم کے بند ہیں اس کے حساب سے یہاں لکھ دیے کچھ پوائنٹس، اس کو بھی دھیان دے لیجیے، آپ ذرا ادھر دیکھ لیجیے۔ یہ جو نظم ہے اس کے پہلے بند میں شاعر نے اپنے وطن کے مختلف پرندوں اور قدرتی مناظر کے ساتھ یہاں کے جنگلوں کا تعارف کرایا ہے کہ یہاں کون کون سے پرندے ہوتے ہیں، یہاں کے جنگل کیسے ہیں، اس کا تعارف کرایا ہے شاعر نے اس نظم کے پہلے بند میں۔ دوسرے بند میں یہاں کے میوے، غلے، ترکاریوں اور پھولوں وغیرہ کا ذکر کیا ہے، اور یہاں کی زمینوں کو زرخیز بتا کر اپنے وطن کو دلکش چمن سے تعبیر کیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے تیسرے بند کے لیے۔ تیسرے بند میں شاعر اپنے وطن کے پہاڑ اور یہاں کے جنگلوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کو جنت کے مشابہ بتاتا ہے، یعنی شاعر کے اپنے وطن سے عشق کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے وطن کو کہتا ہے کہ یہ جنت کا گمان ہوتا ہے، جنت کے مشابہ قرار دیتا ہے اپنے وطن کو شاعر۔ حالانکہ جنت تو جنت ہی ہے، جنت کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی ذہن پر اس کا گمان گزرا۔ جنت تو جو ہوگی وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے اس وقت ہوگی جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور قیامت وغیرہ سے گزر کر تبھی ہم جنت دیکھ پائیں گے۔ اور جنت تو خیر جنت ہی ہے، جنت سے تو کسی چیز کو کوئی مشابہ قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ شاعر کا عشق ہے اپنے وطن سے جو اس طرح سے کہتا ہے، اور اس طرح بار بار کہتا ہے کہ یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن ہے۔ ہر بند کے آخر میں اسی طرح سے شاعر یہ تکرار کرتا ہے یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن ہے، یعنی یہ وطن میرا ہے، اس طرح سے یہ میرا وطن ہے، مجھے اپنے وطن سے اتنا عشق ہے، اتنی محبت ہے، اتنا لگاؤ ہے۔ تو سب سے پہلے
इस नज़्म की रीडिंग कीजिए मेरे साथ सफ़ा नंबर 1 पर। नज़्म का उन्वान पढ़िए, मेरा वतन। इसके बाद जो पहला मिसरा है ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। जहाँ पढ़ा जाए वहीं सब लोग बच्चे उंगली रखें और किताब खोलकर अपने सामने रखें। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर। ये 2 मिसरे मिलाकर एक शेर हो जाता है। अगला शेर है, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। एक मंजर कशी की है इस शायर ने अपने वतन के जंगलों की, और यहाँ के झरने वगैरह, यहाँ के परिंदे, उनका भी तारुफ कराया है। वो सरसब्ज पहाड़, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और वन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। यानी यहाँ के पहाड़ और वन, यहाँ के जंगल जो है वो सरसब्ज हैं, शादाब हैं, हरे भरे हैं। इस तरह से शायर अपने वतन की तारीफ कर रहा है। सफ़ा नंबर 2 पर देखिए दूसरा बंद इस नज़्म का। वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा कियारियाँ। शायर इस बंद में अपने वतन के गल्ले, मेवे और यहाँ की तरकारियों और यहाँ के फूलों की खूबसूरती का जिक्र करते हुए यहाँ की बागों की फुलवारियों का जिक्र करता है और क्यारियों का जिक्र करके वो कहता है कि ज़मीनें वो ज़रखेज़ दिलकश चमन, यहाँ की ज़मीनों को ज़रखेज़ और इसको एक दिलकश चमन से ताबीर कर रहा है। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। आखिरी बंद, तीसरा बंद जो है वो है, पहाड़ों का मंजर, बनों का समा है, इसमें हज़ारों ही चश्मे रवां। यहाँ के पहाड़ों का मंजर, यहाँ की जंगलों का समा ऐसा है कि इनमें हज़ारों चश्मे रवां हैं, हज़ारों चश्मे बह रहे हैं। कहाँ तक बयां इसकी हूँ खूबियाँ, यहाँ तक मैं कहाँ तक इसकी खूबियाँ बयान करूँ, है फिरदौस का इस चमन पर घुमा। इंतहा कर दी शायर ने कि यहाँ इसको अपने वतन को जो है वो फिरदौस का घुमा होता है अपने वतन को देखकर शायर को। ये बाग़ इरम है, ये बाग़ अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। अपने वतन को कह रहा है कि ये जन्नत का बाग़ है, ये वो बाग़ है जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह ताला ने रखा था। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। ये शायर की मोहब्बत और इश्क है अपने वतन से, जो इस नज़्म में आपको उसने बताई। तो अज़ीज़ तलबा, अभी आपने नज़्म की रीडिंग की और नज़्म को समझा। इसके बाद जो काम आपको करने हैं सवाल जवाब की कॉपी में और ग्रामर की कॉपी में, उनमें से 2 काम तो आपको सवाल जवाब की कॉपी में करने हैं। सफ़ा नंबर 4 पर जो अल्फाज मानी हैं, सबसे पहले ये कीजिए अपनी सवाल जवाब की कॉपी में ऊपर हेडिंग डाल के सबक का उन्वान यानी नज़्म का उन्वान मेरा वतन लिखकर, सबक नंबर 1 डालकर, तारीख डालकर बहुत सफाई के साथ अल्फाज मानी लिखने के बाद ये सवाल जवाब हैं यहाँ पर जो मैं अभी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इन सवालों के जवाब लिखेंगे आप। इसमें सबसे पहला सवाल है, शायर ने नज़्म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है। तो पहले बंद में जो परिंदों का जिक्र किया है शायर ने, जिन जिन परिंदों का, उनका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। सवाल नंबर 1 का जवाब हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, दिलकश चमन किसको कहा गया है। बहुत आसान सा सवाल है, इसका जवाब लिखिए। सवाल लिखने के बाद उसका जवाब लिखिए और 2 लाइनें छोड़कर अगला सवाल लिखिए। इसी तरह आपको इसी तरतीब से काम करना है। सवाल नंबर 3 है, फिरदौस का इस चमन पर घुमा, इस मिसरे से क्या मुराद है शायर की, क्या कहना चाहता है अपने वतन के बारे में इस मिसरे में। सवाल नंबर 4, इस नज़्म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई हैं। मुख्तलिफ खूबियाँ जो बयान की गई हैं 3 बंद में, बहुत मुख्तसर है, ज़्यादा नहीं है, आप इनको लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद सवाल नंबर 5, इस नज़्म के शायर का नाम जो मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया था और नज़्म के आखिर में भी लिखा हुआ है, वो इस नज़्म के शायर का नाम है। इस सवाल का जवाब वहाँ से देखकर लिख लीजिए। सवाल नंबर 6, शायर इस नज़्म में क्या पैगाम देना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या पैगाम देना चाहता है शायर इस नज़्म में। तो इसको
आप लिख दिए सवाल नंबर 6 के जवाब को। इसके बाद जो काम है वो है ग्रामर की कॉपियों का। इसमें सबसे पहले अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल है और इसके बाद इमला दुरुस्त करने का काम है। फिर है मिसरे मुकम्मल करने का काम। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4 मिसरे दिए हुए हैं, ये नामुकम्मल है, इनको मुकम्मल करने का काम करना है आपको। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद, ये काम आपको इस तरह करना है, जो कॉलम बनाने हैं आपको इस तरह वाहिद जमा और जमा वाहिद। जो इस किताब में वाहिद के अल्फाज दिए हुए हैं उनको एक एक करके यहाँ लिख दिए और उसके सामने उसकी जमा बनाकर लिख दिए। इसी तरह से जो जमा के अल्फाज दिए हुए हैं उनको यहाँ लिख दिए और उसका जो वाहिद बनता है वो यहाँ इसके सामने लिख दीजिए। बहुत ध्यान से साफ सुथरा काम करेंगे आप लोग। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद, ये इधर भी है कुछ अल्फाज सवाल नंबर 6 पर, तो दोनों तरफ से आप ये अल्फाज देख लेंगे। फिर जो आखिरी काम है मिसरों को सही तरतीब से लिखने का काम, ये शेर मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर मिसरों को बेतरतीब कर दिया गया है, यानी जिस मिसरे के सामने जो मिसरा आना चाहिए वो मिसरा नहीं है बल्कि कोई दूसरा मिसरा रख दिया गया। जानबूझकर आपको सही मिसरा लिखना है मिसरे के सामने। इस तरह से ये 7 काम करने हैं आपको। 2 काम आपको अपनी सवाल जवाब की कॉपी में और बाकी 5 काम आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में। अपना काम मुकम्मल कीजिए, इंडेक्स वगैरह बनाइए और उसके बाद में जब कॉपी चेक कराने के लिए आपसे कहा जाए तो अपनी कॉपियाँ स्कूल में लाके जमा करा दीजिए चेक कराने के लिए। शुक्रिया।